میری درخواست ہے آج کی اس قبولیت کی گھڑی میں 100% پر یقین ہوں، میں حقیقتاً عرض کر رہا ہوں، آج کی قبولیت کی گھڑی ایک شب جمعہ ہے، ہمارے قبولیت کی گھڑی کی میرے پاس دلیلیں سنتے جائیں۔ ایک شب جمعہ ہے، شب جمعہ میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے شب جمعہ میں۔ دوسرا، سفید بالوں والے میری سامنے بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرا، جوان بیٹھے ہیں بے تاب جوانی لے کر یا توبہ کرنے والے۔ تیسرا، پردیسی مسافر بیٹھے ہیں جن کی فرض آخری چیز ہے، آخری فرض، وہ آخری فرض میں میرا اللہ آدھا کر دیتا ہے۔ آخری فرض کتنے ہو گئے؟ 4۔ اور پانچواں، پردیسیوں کا مجمع، لیکن وہ میں کہہ چکا ہوں من کے ساتھ مستر کا مجمع، چین لوگوں کا مجمع، بے قرار لوگوں کا مجمع، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے دل کا رواں رواں کپ کپاتا ہے اور عرش سے فیصلے کروا دیتے ہیں۔ چھٹا، 40 سے زیادہ کا مجمع ہے، 40 لوگوں کا مجموعہ جمع ہو جائے، میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ تو یہاں تک کہتا ہے فرشتے کو کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ تیرے پاس آیا، میرا اللہ کہتا ہے اس بندے کے حق میں کچھ بندوں نے گواہیاں دی ہیں، تو کہتے ہیں فرشتے یا اللہ کچھ لوگ کہتے تھے اچھا ہے، تو فرمایا فرشتوں کہتے ہیں میرا اللہ میرے فرشتوں غور سے سننا ذرا، اچھا تو نہیں تھا، میں اسے جانتا تھا، اس کے دن بھی، اس کی رات بھی، اس کی صبح بھی، اس کی شام بھی، پر بندوں کی گواہی، بندوں کی گواہی میں اس کے حق میں قبول کرتا ہوں اور میں نے اس کے اچھوں میں شامل کر دیا اور بخشش کا سارا نظام بنا دیا۔ اس کے حق میں جو بندوں کی گواہی ہے نا وہ میں نے قبول کر لیا۔ بے چین لوگ، مستر لوگ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی، اور آخری چیز یہ ہے کہ اس کی رحمت آخری درجے کی متوجہ ہے۔ جو ہم نے ان 2 دنوں میں نوافل پڑھے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیغام پہنچواتے تھے، اور حضرت فاطمہ جا کے اپنے والد محترم سے کوئی بات اگر فرماتی تھی تو حضور ٹالتے نہیں تھے۔ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، یہ عمل میرا ساختہ نہیں ہے، میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں۔ اس کے لیے میرا ایک پیج ہے اکابر پر اعتماد، آپ انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد، تو آپ کو فوراً اس پہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک ایک پوری کی پوری ایک سیریز آئے گی جس میں میرے ہر وظیفے کی دلیل، سند، حوالہ، ہر عمل پر۔ تو یہ جو نفل میں ابھی بتانے لگا ہوں، یہ جو نفل بتانے لگا ہوں، یہ نوافل میں نے بے شمار دفعہ بتائے، بے شمار لوگوں نے کیے اور بہت نفع پایا اور بہت اس کا فوری رزلٹ پایا۔ 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، وہ 1 دفعہ یا 100 دفعہ، وہ 100 دفعہ یا 1000 دفعہ، جتنا زیادہ وجدان، جتنا زیادہ گڑ اتنا میٹھا، اس طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کا ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح اقدس کو ہدیہ پہنچائیں اور ان سے عرض کریں کہ اپنے والد محترم کو ہمارا یہ کام کہیں کہ یہ اللہ سے کروا دیں۔ آپ سمجھ لیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ الجھن ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارا یہ دکھ ہے، ہماری یہ تکلیف ہے، ہمارا کوئی مسئلہ دیا کوئی، اور یہ مسلسل نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ لیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 100 پڑھوں گا اور وہ بے دھیانی والے پڑھے، ایک کہتا ہے میں 100 نہیں پڑھتا، میں 5 پڑھتا ہوں، 6 پڑھتا ہوں، 10 پڑھتا ہوں، پر دھیان والے پڑھتا ہوں۔ وہ جو دھیان، توجہ اور اللہ کا تعلق قائم کر کے پڑھے گا وہ 100 سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہمارے اکابر سے اس کی صنعت ہے۔ میرے حضور کا فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمان جو 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس پر برکت نازل کی جاتی ہے۔ برکت، یہی برکت ابھی کہہ رہا ہوں، کچھ نہ رہا، منگتا ہو گیا، کچھ نہ رہا، خالی ہو گیا، برکت نہیں تھی، کثرت تھی۔ اور جو 1 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس پہ کیا نازل کرتا ہے؟ اور بولو، اور جو 40,000 دفعہ پڑھے گا اور بے بہا پڑھے گا، بولو اس پہ کیا برکتیں نازل ہوں گی؟
उस पे क्या बरकतें होंगी। जो एक दफा सूरत कुल वल्लाह, मेरे आका का फरमान है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे हुजूर के गुलाम इसके रावी हैं, फरमाया जो एक दफा सूरत इखलास पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पे बरकत नाजिल फरमाते हैं, और जो 2 मरतबा पढ़ेगा उसके अहल व याल पे फिर बरकत नाजिल फरमाते हैं। पहली दफा पढ़ेगा इस पे, दूसरी दफा पढ़ेगा अल्लाह इसकी फैमिली अहल व याल पे, और जो 3 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसके तमाम पड़ोसियों को बरकत अता फरमाता है। हाँ, एक अल्लाह के वली थे, उनका मकान बिक रहा था, सब ने आके बोली लगाई 1000 की, 2000 की, एक कहने लगा 10,000 में दे दे, वो भी आ गए, दुर्वेश था, उसने कहा मेरा मकान 10,000 में तो है ही नहीं, तो इतने क्यों लगा रहा, किसी ने लगाई। उसने कहा एक तेरा मकान है, एक वली का पड़ोस है, तेरे साथ अल्लाह के फला वली रहते हैं, उनका पड़ोस भी तो है, वो जब अमाल करेंगे उसका मुझे हिस्सा मिलेगा, नूर, बरकतें, रहमतें, पर उसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहता हूं ये मकान मैं ले लूं, ये पैसे तू ले ले, मुझे उनका पड़ोस है। इसलिए फरमाया जो 3 दफा पढ़ेगा उसके तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होगी। बरकत जिसको मिल जाए ना, अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह मुझे बरकत दे, मेरी नस्लों में बरकत दे, मेरे ईमान में बरकत दे, मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरी सेहत में बरकत दे, मेरी चाहत में बरकत दे, मेरी चाहत कौन सी, तुझे चाहने और तेरे हबीब को चाहने। अल्लाह मेरे कदमों में, मेरे सोने में, मेरे उठने में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, और क़यामत तक की मेरी नस्लों में, और हत्ता कि मेरी कब्र में भी बरकत दे। जो बरकत वाली जो कब्र देगा तो हद नजर ऐसी होगी, और मौला ऐसी बरकत दे कि मेरी इज्जत में बरकत दे, मेरे वक्त में बरकत दे, वक्त में बरकत दे। मांगे अल्लाह से बरकत, अल्लाह से बरकत मांगे। और जो बरकत वाले अमाल हैं, मैं सदा एक बात अर्ज करता हूं, आज भी अर्ज कर रहा हूं, जो बरकत वाले अमाल हैं उनके मुतलाशी रहा करें, तलाश में रहा करें, किस अमल में बरकत है, किस अमल में बरकत है, किस अमल में बरकत है, किन लफ्जों में बरकत है, किन बोलों में बरकत है, किन हर्फों में बरकत है, किस मजमे में बरकत है, किस दुआ में बरकत है, किन कदमों में बरकत है, किन कदमों में बरकत है। बरकत के मुतलाशी, बरकत के मंगते, बरकत के भिखारी। जो 3 दफा सूरत इखलास पढ़ता है, फरमाया जो 3 मरतबा पढ़ेगा तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होती है, तमाम पड़ोसियों को बरकत हासिल होती है। और फरमाया जो 12 मरतबा पढ़े अल्लाह जन्नत में 12 महल बना देते हैं। वाह मौला, इतनी तेरी रहमत है, इतनी तेरी अताएं, क़यामत के दिन एक बंदा जाएगा, जरा गौर से सुनना, अल्लाह पाक फरमाएंगे इतने तेरे हज, इतने उम्रे, इतनी तस्बियां, इतनी ज़कातें, इतने सदके, इतने खैरात, इतनी इबादतें, इतनी फला। तो अल्लाह पाक से अर्ज किया गया अल्लाह मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं, अल्लाह फरिश्ते किसी और का डाटा उठा के ले आए, ये मेरा तो है ही नहीं, मैंने तो नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाएंगे आज इंसाफ का दिन है, इसलिए अंग्रेज ने क़यामत के दिन का नाम रखा है कि डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट होगी हर चीज की। आज इंसाफ का दिन है, तूने खुद नहीं किया था पर जरिया बन गया था लोगों के लिए, जरिया बन गया था, तू जरिया बना था। उन्होंने, एक ने 10 को बताया, समझना जरा, 10 ने 40 को, 40 ने 100 को, 100 ने 200, 1000 को बताते गए, उन सब का जितना मिला उतना तुझे भी तेरे नामाल में लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, तेरे नाम अमाल में भी और उसके नाम अमाल में भी कमी नहीं हुई। जरिया जो तू बना था, जरिया जो तू बना था। हजरत इमाम मूसा काज़िम सुभान अल्लाह फरमाने लगे एक दफा, ऐ अल्लाह मेरी सारी नेकियां सिद्दीक़ अकबर को दे दे। तो उन्होंने पूछा क्यों? फरमाया अल्लाह के हबीब के बाद उम्मत के लिए जरिया वो बने हैं, क़यामत तक जितनी बंदा नेकियां करता रहेगा, करता जाएगा, उस सब का हिस्सा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में लिखा जाता जाएगा। जो 12 दफा पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल, जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल
जो 12 दफा पढ़े, जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल का इंतजाम फरमाएंगे और 12 महल उसके लिए। और अगला बात सुनो, मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो जरा हम अपने भाई का महल तो देखाएं। जो इर्द गिर्द मुहाफिज फरिश्ते हैं, जब 12 दफा पढ़ेगा और 12 महल बन जाएंगे। और एक महल कैसे होगा? उसमें 70,000 कमरे होंगे, हर कमरे के 70,000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के अंदर 70,000 गुलाम होंगे, हर कमरे में 70,000 खाने होंगे, रंगारंग की महफिलें होंगी। अल्लाह के इल्म में है क्या होगा और क्या होगा, क्या होगा और, लेकिन है हक, अनदेखे सौदे हक होते हैं। 70,000 मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो देखें जरा अपने भाई का महल तो देखें। और अगला फायदा सुने, और बड़ा मुबारक फायदा है, और वह कि जो 100 मरतबा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ता है, 100 मरतबा, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। और जो हुकूक हैं वो जाके उलमा से पूछे और उनका इजाला करे, और बाकी गुनाह अल्लाह ने 50 साल के माफ कर दिए। कितनी दफा? सिर्फ 100 दफा। रिश्ते एक दूसरे को कहते हैं जरा चल के देखाएं, अपने यार का महल तो देखाएं, महफिल तो देखाएं। और जो 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं जा, क्यों परेशान नहीं, खौफ नारे जहीम का कि करम है मुझ पे करीम का, मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। अल्लाह कहते हैं जा माफ कर दिया। और अगर 400 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले, अल्लाह उसके 100 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। एक दुर्वेश थे, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। एक जंगल में जा रहे थे सफर में कहीं, तो एक जगह जो है रात पड़ गई, एक दरख्त के नीचे क़याम किया। जब क़याम किया तो रात को आंख खुली तो सुना कि 2 बंदे आपस में बातें कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, कान खुले हैं, यानी नींद खुली हुई है। जागते में आवाज आई, एक बंदा कहने लगा इसको हम छेड़ें, तंग करें, यानी किसी बीमारी में, किसी दुख में, किसी तकलीफ में, किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी नाकामी में, किसी उलझन में इसको मुब्तला करें, इसको मुब्तला करें। दूसरा कहने लगा छोड़, तुझे इसने क्या कहा है, तू इसको क्यों तंग करता है? ना ना मैं इसको तंग करूंगा। ऐसे काम जाते जाते किसी को उंगली लगा दी, किसी के आगे पांव कर दिया, पांव के बल गिर गया। कोई क्या कर रहा है? बाज लोगों का मिजाज होता है, ये लोगों के मिजाज में कमी है, शयातीन का मिजाज ही यही है। इसलिए जो इस मिजाज का बंदा उसको शैतान कहते हैं। हाँ, उम्मी मुआशरे में वो बड़ा शैतान आदमी, उसका काम लोगों को तकलीफ देना है, तो उसने कहा इसको तकलीफ ना दे। अच्छा ये अब सुन रहा है, ये सुन रहा है, इसने क्या किया? दिल ही दिल में शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला, ये कुरान पाक की 2 आयतें बगैर हिसाब तक अनमोल खजाने में कुरान पाक की आयत है। ये इसने दिल ही दिल में पढ़ ली, बस एक दफा पढ़ ली, दिल ही दिल में। जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, दिल ही दिल में, जब दिल ही दिल में इसने पढ़ ली, अब दूसरा कहता है जो नेक था, शरीफ था, एक शरीर था, उन्होंने कहा अब बता, तेरी और मेरी जिम्मेदारी ड्यूटी लग गई है, सुबह तक किसी हिफाजत करे। तुझे कहा था ना छेड़े इसको, अब तेरी मेरी जिम्मेदारी लग गई है कि सुबह तक इसकी हिफाजत करे। इसने क्या किया? बेबस था। 2 जिन्नात हैं, एक शरीफ है, एक शरीर है, और मुझे तकलीफ देना चाहते हैं, क्या करें? इसने फौरन उस हस्ती को पुकारा जिसने उसने कहा था अम्मा। इसने फौरन उस हस्ती को पुकारा जिसके हाथ में कायनात के सारे राज, ताकतें, कुव्वतें हैं। और उस हस्ती ने क्या किया? अब इनकी ड्यूटी लगा दे, अब इनकी जिम्मेदारी लगा दे, ये सुबह तक इसकी हिफाजत करें जब तक वो ना जागे। पहले दिन से हमारे साथ दुश्मनी का फैसला है, पहले दिन से हमारे साथ दुश्मनी का फैसला है, पहले दिन से, और वो फैसला हो क्या रहा है, और उसकी वजह से हम तकलीफों, परेशानियों, नुकसानों और मसाइल में चले आ रहे हैं। अब इसका तहफ़्फ़ुज़ क्या है, इसकी हिफाजत क्या है, क्या करें? एक खुद लड़ें, हवाओं से लड़ना। हमारे यहाँ एक माई थी, उसका बेटा था, कहने लगा मेरा पुत्र हर वक्त हवाई ना लड़ दे,
बंदे से लड़ता है, हवाओं से भी लड़ता है सारा दिन। तो हवा से कौन लड़ेगा? हम खुद कहते हैं हवाई चीजें, जिन्नात का नाम हमने हवाई चीजें भी रखा हुआ है कि ऐसी चीजें जो हवा के झोंके की तरह नजर नहीं आती। हमारे माशरे में जिन्नात को हवाई चीजें भी, ऊपर की चीजें भी कहा जाता है, हवाई चीजें भी कहा जाता है। हवा से कौन लड़ सकता है? बेबस हैं हम बेबस हैं, हम नहीं लड़ सकते। फिर ऐसी ताकत को ले आए, ऐसी ताकत को ले आए जो लड़ सकती है, और वो अल्लाह है, और उसकी ताकत है, और उसकी कुव्वत है, और उसका 100% जमाल है, जलाल है, इज्जत है, अजमत है, वकार है, शान और शौकत है। वो ताकत है जो लड़ सकती है, कोई नहीं लड़ सकता। याद रखना, जिन्नात शयातीन से कोई नहीं लड़ सकता। मेरी भी जिंदगी गुजरी है रूहानियत की दुनिया में तालिब इल्म की हैसियत से। वो जिन ताबे वगैरह नहीं है, लेकिन इनसे लड़ कोई नहीं सकता। इनसे अगर अल्लाह की मदद साथ नहीं है और अल्लाह के नाम की ताकत और ढाल साथ नहीं है, इनसे कोई नहीं लड़ सकता। और ना लड़ने की कोशिश करना। अल्लाह की मदद, ये आयतुल कुर्सी क्या है? ये सारी अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मिन्नत और खुशामद है। तर्जमा उठा के देख, ये आयतुल कुर्सी सारी मेरी अल्लाह की मिन्नत और खुशामद है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। मौला तेरे अलावा है ही कोई नहीं। ला इलाहा इल्ला अल हय्य, तू हमेशा जिंदा है, मौत नहीं। अल कय्यूम, सब मिट जाएंगे, तू कायम है। ला ताखुजुहु सिना, ए मौला तू तो वो हस्ती है जिसे न नींद आए न ऊँग आए। वला नौम, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, सारी कायनात, सारी जमीनें, सारे आसमान मौला तेरे ही हैं, हुकूमत तेरे पास है। मंज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिज़, कौन है जो सिफारिश करे? तेरा अमर होगा तो सिफारिश होगी। तेरी हुकूमत ताकत के सामने कोई बंदा ना हिल सके, ना आंख उठा सके। या लहू मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फ़हुम, तो हमारा पिछला डाटा भी जानता है, तो हमारा अगला डाटा भी जानता है। हमारी पिछली कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग तेरे पास है, हमारी अंधेरे उजाले तेरे पास हैं, हमारी सुबह शामें तेरे पास हैं, हमारे दिल के तसव्वुरात तेरे पास हैं, दिल की सोचें और ख्यालात तेरे पास हैं। वला युहीतून बिशै, और तेरी ताकत हर किसी पे गालिब है, इहाता किया हुआ है। इल्ला बिमा मिन इल्मी, इल्ला बस तेरे इल्म में है। वसिया कुर्सी, तेरी कुर्सी बड़ी वसी है, तेरा इक़्तिदार बड़ा वसी है, तेरी हुकूमत बड़ी वसी है। तेरे पास कई सिकंदर आए और गए, कई सिकंदर आए और गए। मैं ख़वारिज़म में गया, वहां बुखारा से आगे, बहुत आगे, वहां का सफर था जहाज का, बहुत आगे, वहां कई मीलों मील। वहां एक शहर था, उसका नाम था नौराता। शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बड़ों की किताबों में उनके तज़किरे आते हैं। उनका वहां मज़ार था और लोग उनके यहाँ आके 9 रातें गुजारते थे और वो अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। ये बड़ों के होते थे। जैसे साल के बाद, ये भी आज राज बता दूं, साल के बाद बुजुर्ग हर कोने, हर करिए, हर गोशे में निकल जाते थे, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। एक जगह मखसूस होती थी, मुर्शिद का आस्ताना, साल के बाद वहीं जमा होते थे और एक दूसरे से मिलते थे, मेल जोल होता था। इस मेल जोल का नाम है मेला, मिलना, मेल जोल। अब वो मेला बनते बनते कहानी कहाँ निकल गई। मेले का नाम आते ही फौरन सर्कस आती है। हालांकि मेला क्या था? मिलते थे, फलां इलाके के हालात क्या हैं, फलां गांव के, फलां करिए के, फलां शहर के क्या हालात हैं, वहां लोगों की दीनी हालत, ईमानी हालत क्या है, वहां क्या बातिल कुफ्र है, वहां क्या निजाम है, क्या। एक दूसरे से मिलते, हालात बताते थे, फिर चंद दिन साथ रहते थे, एक दूसरे से हालात लेके फिर लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाने निकल जाते थे, फिर साल के बाद इकट्ठे होते थे। इसका नाम था मेला, इसका नाम था मेला। और उसका नाम क्या था? पहले क्या बताया मैंने? नौराता। नौराते किसी दरवेश के पास आते थे, अल्लाह का नाम भी सिखाते थे, दम भी करते थे, दुआ भी करते थे, उसको अल्लाह अल्लाह भी कराते थे। भला चंगा, सेहतमंद, तंदुरुस्त, मसाइल को हल पा के चला जाता था। ये था नौराता। शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने 9 रातों में लोग आते थे। मैं कहना ये चाह रहा था, उनके मजार के ऊपर एक बहुत बड़ा किला था, अंग्रेज उसके ऊपर सारे चढ़ रहे थे।
اونچا قلعہ تھا، میں نے اگلا سفر کرنا تھا، میں قلعے پہ نہ گیا، میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے، آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے، یہ اس کی کرسیاں تھیں، ایک میرے رب کی کرسی ہے، وسیع کرسی، وسیع کرسی، سکندر کے قلعے ہیں، سکندر کہاں کہاں آیا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ رہی قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گل ہیں نہ گنچے نہ بوٹے نہ پتے، ہوئے باغ نظرے خزاں کیسے کیسے، ہر ایک دل پہ ہے داغ ناکامیوں کے، نشاں دے گیا بے نشاں کیسے کیسے، اس کی کرسی ہے۔ کہتے میں نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی تھی، میں دیکھو میری کیا مدد ہوئی، آیت الکرسی پڑھی تھی، دیکھو میری کیا حفاظت ہوئی، بس آیت الکرسی پڑھنی تھی، وہ چیز یوں چلی گئی۔ اب اپنا واقعہ سناتے، وہ آیت الکرسی بنیادی طور پہ میرے رب کی ساری منت اور خوشامد ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، مولا تیرا علو العظم عظمتیں اور تیری کبریائیاں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں بندہ آ کے نا ایسے حاجز آ کے ہاتھ باندھ جاتا ہے کہ بس میری بس ہو گئی ہے، میں تیری عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب ہم بے بس ہو جائیں پھر ایسی طاقتور چیز کو پکاریں جس کے پاس اقتدار بھی ہو، اختیار بھی ہو، طاقتیں قوتیں بھی ہوں اور زوال نہ ہو، سرمدی جاویدانی ہو، ایسی طاقت جس کو زوال نہ ہو، اس کو پکاریں۔